So I have started with a decision tree overview. Decision tree is a one kind of algorithm coming under classification. It is an supervised learning algorithm and it is used for prediction purpose. In this, first we train the model by giving a training data set, and after that we test the model on test or unseen data. How it exactly work? How we train the model? For training the model, we require a training data set where training data set contain two things. One is a input variable, that means input data, and next is a output variable which we called as a class label. Class label can be binomial or multi-class. So here class is two class, either yes or no. So by using this training data set, we train the classification model, that is decision tree. Then we test the model. To test the model, we give an unseen data, means a data or which is not available in a training set, and we check whether our model is giving a perfect answer or not. So here what answer he is going to give, it will going to give a predict class, means by its computer, yes or no. The decision tree is like your binary tree or a simple tree we have learned in our data structure, where decision tree uses tree structure to specify the sequence of decisions and consequences. Here, uh, so we have seen here yesterday the example of decision tree also, how the decision tree is formed. Then we have seen for decision tree, we have to give some input x1, x2, xn, and it will going to predict a output variable, that is y, which is a class. Then we have seen one simple example of, like if the root is there, then we ask some question. After getting some answer for that question, there are the number of branches depend on the answer. Like for gender, if you have only two answers, so there are two branches. Again, at next level, we ask some another question. Likewise, we will go until we get some class. So the topmost is called as the root, then branches, then internal nodes, and last one where class label is defined is called as the leaf node, and the depth of the tree. Then we have seen the meaning of each and everything in last lecture. Now we'll start with our new topic, that is a general algorithm of decision tree. This is a very important topic because we are going to study the example of how to solve a decision tree. So everybody is with me. Main topic today, that is general algorithm for decision tree. Now you can stop your audio. Everyone just stop your audio. So here decision tree is, in this, the objective of a decision tree algorithm is to construct a tree T from a training set S. The algorithm constructs subtree for subset of S recursively until one of the following criteria is met. कि जब भी ट्रेनिंग डेटा सेट से आप डिसीजन ट्री बनाओगे तो ये ट्री कब तक बनाते जाना है, ओके कौन से पॉइंट पे हमको रुकना है. जैसे हमने देखा था कि क्लस्टरिंग में कौन सा पॉइंट आता है जब हमको क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम रुकाना है, या प्रियोरी एल्गोरिथम में हमने देखा था कि कब हमको फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाते बनाते रुकाना है. तो ऐसे ही जब आप डिसीजन ट्री बनाते हो, एट व्हाट पॉइंट यू हैव टू स्टॉप टू मेक द डिसीजन ट्री. सो देयर आर डिफरेंट थ्री क्राइटेरिया. वेरी फर्स्ट, when all the leaf nodes in the tree satisfy the minimum purity threshold. जब लीफ नोड एक मिनिमम प्योरिटी थ्रेशोल्ड को सेटिस्फाई करेगा, सो दैट टाइम यू कैन स्टॉप अ ट्री. सेकेंड, व्हेन द ट्री कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट, यानी जितने एट्रीब्यूट थे डेटा सेट में, हर एट्रीब्यूट हम लोगों ने ट्री में ऐड कर दिए हैं और अभी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बचा है कि हम ट्री को उसके साथ स्प्लिट कर सकते हैं, or any other stopping criteria is satisfied such as the maximum depth of the tree. जब आपने algorithm लिखना start किया था, okay, और आपने पहले specify किया था we just want to construct a tree having the depth equal to 3. तो जैसे ही tree का depth जो है construct करने का 3 तक पहुंच जाएगा तो automatically tree बनना stop हो जाएगा by using a algorithm. So these are the different criteria. Now how to construct a tree? So there are a different steps. So here step 1 is
फर्स्ट चूज मोस्ट इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट, यानी ट्री जब आपको बनाना है तो रूट नोड कौन सा होना चाहिए। अगर आपके टेबल में 5 एट्रीब्यूट है, 6 एट्रीब्यूट है, मतलब 6 फील्ड्स है, जैसे अगर हम लेते हैं कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जो है सपोज, तो उसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, बहुत सारी चीजें, तो कौन सा ऐसा फील्ड है जो आपके ट्री के रूट पे जाएगा। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप 1 इज यू हैव टू चूज द एट्रीब्यूट और फील्ड फ्रॉम योर टेबल डेटा सेट which is most informative. Now how to find out the most informative attribute? So here question is how to choose the most informative attribute from your training table or training data set. So for that the answer is we have to use a method which is called as the entropy based method. फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया। जब ट्री बनाना है हमको, डिसीजन ट्री, तो जिस टेबल से आप ट्री बनाने वाले हो उस टेबल में बहुत सारे फील्ड होने वाले हैं, तो कौन सा फील्ड आपके रूट पे जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा फील्ड रूट पे लेना है, तो ऐसा एट्रीब्यूट लेना है, ऐसा फील्ड लेना है जो आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोस्ट इंफॉर्मेटिव। नाउ हाउ टू फाइंड आउट विच फील्ड इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव? So you have to use a method which is called as the entropy based method. Now what is mean by entropy based method? So entropy method, it measures the two things. One is entropy and second is information gain. दो चीजें इसमें हम मेजर करते हैं एंट्रोपी मेथड में। एंट्रोपी मेथड में वेरी फर्स्ट वी आल्सो कैलकुलेट द एंट्रोपी एज वेल एज वी कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन। For calculating both the thing, there is some formula is given. Now first, what is mean by entropy? Entropy means it measures the impurity of an attribute. हर एट्रीब्यूट कितना प्योर है या कितना इम्प्योर है वो हम चेक करते हैं। तो एंट्रोपी मेजर करता है कि एट्रीब्यूट कितना इम्प्योर है, और इंफॉर्मेशन गेन इट मेजर्स how much that attribute is pure. So information gain is all about to measure the purity and entropy is all about to measure the impurity of that attribute. अभी आप बोलोगे क्या होता है entropy, क्या है, सॉरी प्योरिटी मतलब क्या है, इम्प्योरिटी मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो एट्रीब्यूट प्योर है या इम्प्योर है? ओके, सो हियर इम्प्योरिटी मीन्स द रैंडमनेस ऑन और अनसर्टेनिटी, मतलब वो एट्रीब्यूट कितना अनसर्टन है और कितना रैंडम है। जितना ज्यादा अनसर्टन होगा उतना वो इम्प्योर होगा, और जितना वो सर्टन रहेगा, प्रेडिक्टेड रहेगा, वो उसको हम बोलेंगे प्योरिटी। ओके, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, बिफोर गोइंग टू दिस आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर आपके पास कॉइन है और आप उस कॉइन को टॉस करते हैं, ओके, और आप क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, अगर पहले आपने फर्स्ट 10 टाइम्स आपने टॉस किया था और 10 में से 8 टाइम पर क्या आया था, हेड आया था, और 2 ही टाइम पे टेल आया था, तो नेक्स्ट 11 टाइम जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी थी, हेड की थी क्या टेल की थी? हेड की थी। तो इट्स मोर चांसेस दैट हेड आने वाला है। ओके, तो जितनी उसकी श्योरिटी ज्यादा है वो वैल्यू आने की, तो हम बोलेंगे उतना ही वो एट्रीब्यूट क्या है, प्योर है। और जितना अनसर्टन रहेगा, यानी अगर आपने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, 5 टाइम हेड आया, 5 टाइम टेल आया, सो नाउ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई दोनों की, 50-50%। तो जब 11 टाइम आप कॉइन टॉस करोगे, यू कैन नॉट श्योरली टेल कि अभी हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो जब प्रोबेबिलिटी दोनों क्लास की, दोनों आउटपुट की बहुत सेम होती है, सो वी कॉल इट इज एन इम्प्योर। हमको बहुत डिफिकल्ट है बताना क्या होने वाला है। ओके, सो नाउ फॉर कैलकुलेटिंग एंट्रोपी हमने देखा कि दो चीजें, एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, if you have a pen and paper or if you have a mobile, just take a screenshot of this like formula. We require this formula in next calculation. तो entropy जो calculate की जाती है, hx is called as the entropy. It is equal to minus summation of x belongs to capital X, where capital X is a class, यानी जो आपका output variable रहेगा, yes or no, true or false, whatever it is your class.
सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग अ प्रोबेबिलिटी, पी इंडिकेट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो जो भी आप एक्स यानी जो भी इनपुट आप कंसिडर कर रहे हो किसी एट्रीब्यूट का, तो वो इनपुट की आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हम चेक कर रहे हैं। सो वेरी इजी फॉर्मूला, इट इज अ पी ऑफ एक्स log to the base 2 p of x. So this is an formula here. Then in this, entropy is equal to 0 when all p of x is 0 or 1. ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो क्या है इसमें। उन्होंने बोला है कि अगर किसी क्लास की आने की, जैसे अगर मैं कॉइन को हम जब टॉस कर रहे हैं, ओके, तो उसमें हमारे क्लास क्या आ रहे हैं कि इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हमने 10 टाइम्स टॉस किया और 10 के 10 टाइम्स हेड ही आया है, तो इट्स मोर प्रोबेबिलिटी कि 11 टाइम भी क्या आएगा, हेड ही आएगा। ओके, तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है इतना, क्योंकि एक ही क्लास जितनी भी बार हमने चेक किया उतनी बार एक ही क्लास का आउटपुट आया है। तो दैट टाइम योर एंट्रोपी इज 0, कि जब प्रोबेबिलिटी जो है हेड आने की ये क्या है, पूरी तरह से 1 है, और टेल आने की 0 है, मतलब क्योंकि एक भी बार नहीं आया है। तो जब कोई भी क्लास की प्रोबेबिलिटी आइदर 1 हो जाती है, मतलब 100% हो जाती है, या फिर 0% हो जाती है, तो वो टाइम पे एंट्रोपी की वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूले की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। एंड एंट्रोपी इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का आंसर 1 कब आएगा, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल क्लास लेबल इज 50-50%। इसका मतलब हेड और टेल दोनों 50-50% हमें आए हुए जितनी बार हमने चेक किया है। ओके, तो बहुत अनसर्टन है, हम कुछ नहीं बोल सकते, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ओके, सो इट इज वेरी अनसर्टन, 50-50% प्रोबेबिलिटी। तो वो टाइम पे एंट्रोपी की वैल्यू 1 हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपकी कैलकुलेशन ये टाइम पे कम होते हैं। तो आपको चेक करना है कि जब आप प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो, अगर ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इधर 0 या 1 आई है, तो ऑब्वियसली इसका एच ऑफ एक्स का आंसर 0 आने वाला है। अगर प्रोबेबिलिटी जो है, जो क्लासेस आप चेक कर रहे हो, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, और हेड और टेल, ये दोनों 50-50% आए, तो इस फॉर्मूले का आंसर 1 आने वाला है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ है, मतलब अगर हेड 10 टाइम में से हेड 3 बार आया है और टेल जो है 7 टाइम आया है, तो दोनों भी रूल में नहीं बैठता है, तो दैट टाइम यू हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर दिस फॉर्मूला। सो ये हो गया एंट्रोपी का इक्वेशन कैसे करना है। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो इंफॉर्मेशन गेन के लिए फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला है जिसमें हमको ईएस मतलब जो बेस एंट्रोपी जो हमने ये यहाँ पे कैलकुलेट की थी, विच इज कॉल्ड एज द बेस एंट्रोपी ईएस, माइनस जो भी आप एट्रीब्यूट कंसिडर करने वाले हो, ए मीन्स एट्रीब्यूट फ्रॉम योर ट्रेनिंग सेट। हर एट्रीब्यूट की हर वैल्यू के लिए हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। So information gain can be tell as base entropy minus conditional entropy of attribute. हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके ये सब डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ बिकॉज वी आर सीइंग द एग्जाम्पल, जो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से दोगे, थोड़ा सा देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो एवरीबडी इज विथ मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here our example start with a training set, क्योंकि डिसीजन ट्री के लिए पहले हमको ट्रेनिंग सेट लगता है। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग सेट जो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो मोबाइल पे। अब आप देखो ये ट्रेनिंग सेट जो है, इसमें कुछ इनपुट रहेगा और कुछ क्लास लेबल रहेगा। सो कितने क्लासेस दिख रहे हैं, देखो ये जो ट्रेनिंग सेट है, इस ट्रेनिंग सेट में ये जितने भी एट्रीब्यूट है, फर्स्ट 4 एट्रीब्यूट, दीज आर आर इनपुट एट्रीब्यूट, ये हमारे इनपुट है डिसीजन ट्री के लिए। ओके, और इसका आउटपुट जो है, यानी हमको प्रेडिक्ट क्या करना है, सो दिस इज योर प्रेडिक्टेड क्लास, यानी आपका आउटपुट है। तो आउटपुट में आपको जो वैल्यूज नजर आ रही होगी, क्या वैल्यूज आपको दिख रही है यहाँ पे, कितनी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे? What are the different values coming here?
Yes or no? Only two Yes values. or no? Two different value. Yes Yes. or no? Yes, only two different values are there. Yes and no. यानी हमारे क्लास क्या है, कितने क्लास है, टू क्लास है. क्लास 1 इज yes, क्लास 2 इज no. That's it. ओके, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो प्रेडिक्टेड वेरिएबल जो होता है, हमेशा लास्ट वाला जो कॉलम होता है उसको हम प्रेडिक्टेड वेरिएबल बोलते हैं, और उसके आगे जितने होते हैं वो इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो हियर दिस आर द इनपुट एट्रीब्यूट, दिस इज योर क्लास लेवल. तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लास जो है, दो क्लास है, यस और नो. नाउ अभी हमको हर क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अब यहाँ पे आप चेक करो कि यस कितनी बार आया है और नो कितनी बार आया, हम कैलकुलेट करेंगे. सो इफ यू सी, नो आया है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स. ओके, और टोटल रोज कितने हैं हमारे यहाँ पे, 14 रोज है. तो 14 में से 5 टाइम्स नो आया है, इसका मतलब बचे हुए टाइम पे क्या आया है, यस आया है. तो यस आया है 9 टाइम्स और नो आया है 5 टाइम्स. तो हमारा जो क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पहले निकाली. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास. सो P ऑफ बाइस कंप्यूटर इक्वल टू यस. हमारा लास्ट क्लास क्या है, बाइस कंप्यूटर इक्वल टू यस. ये 9 टाइम आया है 14 में से, और बाइस कंप्यूटर इक्वल टू नो ये आया है हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स फ्रॉम 14. सो नाउ विल कैलकुलेट द बेस इंट्रोपी. जो क्लास की इंट्रोपी है आउटपुट की, वो इंट्रोपी हम पहले कैलकुलेट करने वाले हैं. तो बहुत इजी है. अगर आपने फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट निकाला होगा तो आपको याद होगा कि क्या है. अभी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला वापस यहाँ पे लिखा हुआ है. तो फॉर्मूला हम कैसे निकालने वाले हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू x, मतलब जितनी भी वैल्यूज है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की. तो बाइस कंप्यूटर ये जो एट्रीब्यूट है इसकी कौन से वैल्यूज है, यस है और नो है. इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया एंट्रोपी ऑफ लास्ट कॉलम s. तो उसमें कौन से इंफॉर्मेशन है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, यस है और नो है. यस कितने टाइम आया है, 9 टाइम, और नो कितने टाइम आया है, 5 टाइम. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9,5. अब ये वैल्यूज हम ये फॉर्मूले में पुट करने वाले. ओके, अब ये फॉर्मूला क्या दिया है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x log टू द बेस 2 p ऑफ x. अब ये x हर वैल्यू के लिए रहेगा. तो अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या है, एक है 9 और एक है 5. सो टू वैल्यूज वी आर हैविंग फॉर x. तो हमने फर्स्ट नो ये वैल्यू x की जगह पुट की. तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या आया है, 9. बट 9 कितने में से, आउट ऑफ 14. तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, तो माइनस सिंबल ले लिया. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या है, 9/14. हमने लिख दिया 9/14. उसके बाद आया लॉग टू द बेस 2, इसके लिए हमने लिख दिया लॉग टू द बेस 2. और वापस क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. तो जो वैल्यू आप लॉग के बाहर लेते हैं वही वैल्यू आपके लॉग के इनसाइड में आती है. तो ये हो गया आपके यस के लिए. वैसे ही नो की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/14. तो यहाँ पे अगेन आ गया माइनस सिंबल है बाहर, इसके लिए माइनस 5/14 log टू द बेस 2 5/14. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया. सबको समझ में आया हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले क्लास की फर्स्ट लास्ट कॉलम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की. उसमें चेक किया कि कौन से दो वैल्यूज है, वैल्यूज आ गए यस और नो. ओके, टोटल रोज 14 है. यस आया है 9/14 टाइम्स और नो आया है 5/14 टाइम्स. तो अभी हमको बेस एंट्रोपी निकालनी है, यानी जो आपका प्रेडिक्टेड क्लास है उसकी एंट्रोपी निकालनी है. उसमें हमारे वैल्यूज है यस एंड नो. तो इसके लिए हमने हर एक वैल्यू जो है, यस पहली बार हमने ये फॉर्मूले में डाला, फिर सेकेंड टाइम नो की वैल्यू ये फॉर्मूले में डाली. एस की वैल्यू है 9/14, इसके लिए फॉर्मूले में आ गया प्रोबेबिलिटी की जगह पे 9/14 log टू द बेस 2 9/14. यहाँ पे सिंबल माइनस है, इसके लिए वापस हमने माइनस लिया. सेकेंड वैल्यू है नो, नो की वैल्यू है 5/14, इसके लिए आ गया 5/14 log टू द बेस 2 5/14. और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद हमको आंसर आया है 0.94. यहाँ तक सबको समझ, Range within 30 to 40. ओके, रेंज विद इन 30 to 40 ये एक वैल्यू है. और Greater than 40. ग्रेटर देन 40 और लेस देन इक्वल टू 30. लेस देन इक्वल टू 30. यानी स्टेप 1 समझ लो, जो भी एट्रीब्यूट हम कंसिडर कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट में डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो वैल्यूज लिख दी.
फर्स्ट वैल्यू लिखी लेस देन 30। लेस देन 30 कितनी बार आया है पूरे टेबल में? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया 5 टाइम्स। और ये 5 टाइम्स में हमको चेक करना है कि 22 कंप्यूटर में क्या वैल्यू थी। तो 5 में से देखो नो 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 देन यस एंड यस। जो 5 रोज है जिसमें वैल्यू लेस देन 30 है उसमें 22 कंप्यूटर की नो की वैल्यू कितनी बार आई है, यस की वैल्यू कितनी बार आई है, वो हमको चेक करना है। तो नो आया है 3 टाइम्स और यस आया है 2 टाइम्स, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही सेकेंड क्या रहेगा हमारा 30/40। सो 30-40 ये कितनी बार आया है? 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स आया। 4 में से देखो फर्स्ट वैल्यू में आंसर आया है यस, फर्स्ट इसमें आंसर आया है यस, सेकेंड इसमें आंसर आया है यस, थर्ड इसमें भी आंसर आया है यस, 4 इसमें भी आंसर आया है यस। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। हर बार आंसर जो है क्लास के लिए आंसर क्या आया है? यस। तो यस आ गया 4 टाइम, नो आ गया 0 टाइम। ऐसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं? चेक नेक्स्ट इज ग्रेटर देन 40। सो ग्रेटर देन 40 के कितने रोज है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 रोज आर देयर, तो हमने लिख दिया 5 रोज आर देयर। सो 5 रोज में से यस कितनी बार आया है? 1 2 3 टाइम्स। सो ओके थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यस आया है हमारा यहाँ पे 3 टाइम्स और नो आया है कितनी बार? 1 एंड 2। सो नो आया है हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स। तो हम लोगों ने क्या किया? हर एक वैल्यू वट एवर द एट्रीब्यूट यू आर कंसिडरिंग, उस एट्रीब्यूट के कितने वैल्यूज है टेबल में वो वैल्यूज निकाल लिए। हर वैल्यू के कितने रोज है वो निकाल लिए। हर रो के लिए जो क्लास है उस क्लास की जो 2 वैल्यूज रहेगी, तो यस वैल्यू कितनी बार आ रही है, नो वैल्यू कितनी बार आ रही है, वो हमने पुट कर दिया। ये समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप हमारा इजी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके सो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अभी ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये वैल्यू से हमको उसका इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। ओके तो अभी ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये वैल्यूज याद रखो कि लेस देन 30 के लिए 2 एंड 3 है, 30 एंड 40 के लिए 4 एंड 0 है, ग्रेटर देन 40 के लिए 2 एंड 3 है या फिर 3 एंड 2 है। ओके अब ये वैल्यूज हमारा जो इंफॉर्मेशन गेन का व्हाट एवर द फॉर्मूला वी हैव टू पुट दैट फॉर्मूला द वैल्यूज ऑफ एज फॉर इन दैट फॉर्मूला। ओके अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा S, ए मतलब हो गया एट्रीब्यूट जिसकी एंट्रोपी, जिसका इंफॉर्मेशन गेन ऑफ फाइंड आउट कर रहे हो। सो करंटली वी आर कंसिडरिंग अ एज, तो यहाँ पे आ गया S, एज। अब ये फॉर्मूले में सबसे पहली चीज होती है E ऑफ S, मतलब होता है आपकी बेस एंट्रोपी। तो अभी बेस एंट्रोपी यानी क्या होती है? जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दिस इज कॉल्ड एज द बेस एंट्रोपी E ऑफ S। तो इसकी वैल्यू आई थी हमारी 0.94। तो यहाँ पे फॉर्मूले में E ऑफ S की जगह पे हमने 0.94 ये डाल दिया, जो हमने सबसे स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी। एंट्रोपी में एज के जितने भी वैल्यूज हमने निकाले, 3 वैल्यूज निकाले, वो हमको निकालना है। मीन्स एंट्रोपी ऑफ लेस देन 30 कितनी बार आया हुआ है, एंट्रोपी ऑफ 30-40 कितनी बार आया है, और एंट्रोपी ऑफ ग्रेटर देन 40 कितना आया है। ओके और अब इस सब के आगे मैंने कुछ वैल्यू लगाई है। ओके नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू? इज ये वैल्यू बता रहा है कि लेस देन 30 ये टोटल 14 में से कितनी बार आया हुआ है। ओके तो जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है जैसे लेस देन 30 ये कितनी बार आया था? 5 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ रोज आर 14, 14 में से 5 टाइम, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो लिख दिया है प्रोबेबिलिटी में कि लेस देन 30 ये वैल्यू टोटल ट्रेनिंग सेट में कितनी बार आई थी? 5 टाइम्स आउट ऑफ 14 रोज। 30/40 ये वैल्यू आई थी 4 टाइम्स, ये वैल्यू आई थी 5 टाइम्स। ओके ये लग गया आगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमको एक्चुअल इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसकी सॉरी इंट्रोपी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे निकाली, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमको उसका एंट्रोपी निकालना है उस पर्टिकुलर वैल्यू का। तो एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं? सो यू नो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी? ये है हमारा एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, P ऑफ x log to the 2 P ऑफ x।
तो वो फॉर्मूला हम हर एक वैल्यू के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो पहली एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करनी है लेस देन 30 के लिए। लेस देन 30 के लिए यस आया हुआ है 2 टाइम्स एंड नो आया हुआ है हमारा 3 टाइम्स, और टोटल रोज कितने हैं 5। टोटल रोज इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने हैं 5, और 5 में से डिवाइडेशन कितना है, यस वाले रोज है 2 एंड नो वाले रोज है 3। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, पहले यस के लिए वैल्यू हमने लिखी, सो 2/5 log टू द बेस 2, अगेन 2/5, जो वैल्यू लॉग के बाहर आती है वही वैल्यू लॉग के अंदर आ गई, माइनस सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी 3 है, सो माइनस 3/5 log टू द बेस 2 3/5। whenever you solve this you will find out this answer। ये आंसर हमारा आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू किसकी निकालने वाले हैं अभी, सेकेंड की, यानी इंट्रोपी ऑफ 30-40 की। ओके, और उसमें टोटल रोज कितने हैं 4 है, और 4 में से डिवाइडेशन कैसा हुआ है हमारा, यस के लिए 4 है, नो के लिए 0 है। ओके, सो वी हैव पुटेड दैट वैल्यू। सो फॉर यस, आउट ऑफ 4 यस के लिए वैल्यू 4 है, नो के लिए वैल्यू 0 है। तो हमने प्रोबेबिलिटी डाल दी यस की 4/4 log टू द बेस 2 4/4, माइनस नो की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, सो 0/4 log टू द बेस 2 0/4। हमने चेक किया था कि एंट्रोपी पे अगर किसी की वैल्यू 0 आ रही है या फिर किसी की वैल्यू 100% आ रही है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एंट्रोपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी बन जाती है 0, और अगर 50-50% आती है तो उसकी वैल्यू आउटपुट में 1 बन जाती है। Okay, either you can calculate or you can directly write down a 0. Now for third value, तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या है 5। 5 में से कितनी बार वैल्यू आई है हमारी, यस के लिए 2 टाइम आई है, सॉरी, और नो के लिए 3 टाइम्स आई है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने वापस से फॉर्मूले में डाल दी। सो 2/5 log टू द बेस 2 2/5 माइनस सेकेंड वैल्यू इज 3 3/5 log टू द बेस 3/5, वैल्यू आ गई 0.90। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की है एंट्रोपी की, यानी सिर्फ 1, 2 और 3। ये वैल्यू हमको यहाँ पे ये मिल गई है, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे ये फॉर्मूले के अंदर अभी। सो जैसे हमने ये वैल्यू फॉर्मूले में डाली, सो यू विल गेट द फॉर्मूला। हमारे पास 0.94 ऑलरेडी था, 0.94 डाल दिया। सेकेंड वैल्यू थी 5/14, उसको मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू आई थी 0.35, उसको मल्टीप्लाई करने वाले एंट्रोपी ऑफ 30, एंट्रोपी ऑफ 30 की वैल्यू थी 0.97, वो हमने यहाँ पे डाल दी। सो लाइकवाइज वी हैव जस्ट पुटेड द वैल्यूज ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे 0 वैल्यू डाल दी, 4/14 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, देन नेक्स्ट 5/14 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, एंड नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ ग्रेटर देन 40 जो है उसकी वैल्यू 0.97 है जो हमने यहाँ पे डाली है। सो आफ्टर पुटिंग ऑल दिस फॉर्मूला वी गॉट द आंसर here that the information gain for h is equal to 0.26। ये हमको इसका information gain मिला है h के लिए। तो जैसे हम लोगों ने h के लिए किया है, so likewise we have to calculate for 4 attribute। second attribute is student, उसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया 0.15, देन क्रेडिट के लिए आया 0.048 एंड इनकम के लिए आया 0.029। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, इंफॉर्मेशन गेन कौन दे रहा है सबसे हाईएस्ट इन वैल्यूज में से, हु इज गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू हियर, which attribute is giving the maximum value here? Age. Yes, Age. age is Age. giving the Age. highest information gain, right? तो इसके लिए हमारा रूट जो है, जो ट्री का रूट है, रूट में कौन सा एट्रीब्यूट जाने वाला है, as highest gain is given by age, so age attribute will come at our root। तो रूट में हमारा एज आ गया। अब रूट में कितने वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, तो उसके 3 ब्रांचेस बनेंगे। तो आपकी ट्री के कितने ब्रांचेस बन गए, 3 ब्रांचेस। ब्रांच 1 में फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। अब हमको ये ट्री को आगे ग्रो करना है कि कैसे, अभी सेकेंड एट्रीब्यूट क्या आएगा, तो सेकेंड एट्रीब्यूट जो उससे लेस वैल्यू थी, लेस वैल्यू किसकी थी, उसके बाद वाली वैल्यू स्टूडेंट की। सो सेकेंड वन विल बी योर स्टूडेंट। लेकिन उसको निकालने के पहले 30/40 इसकी एंट्रोपी क्या आई हुई थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे एज के लिए 30/40 इसकी एंट्रोपी क्या आई थी 0।
0 मतलब क्या कि all are